Hello, Dr. Ravi. Am I audible? Yes. Okay, good afternoon, everyone, and welcome to the seminar. So, this side, Dr. Bharti from BJN Radaropa Software team. So, I welcome you all, Dr. Ravi, and all our attendees. So, today we are having a case discussion on blepharospasm. So, Dr. Ravi is going to tell us about the condition, like what is the condition, and also he is going to explain about some cases which he have recently solved. So many of you know about Dr. Ravi. So let me give a quick introduction of Dr. Ravi. So Dr. Ravi Singh is a classical homeopath from Lucknow. He has done his MD from Sai Nath PG Med Institute, Prayagraj. He is practicing since 24 years at Balrampur and Lucknow. He is one of an ardent follower of medicine transmission through hairs. Many of you know this Sahani effect, in which no oral medicine is required. So he has inherited this from his patient. Sorry, inherited this method from his father, who was an admirer of Dr. B. Sahani, who has discovered this method in the 1967. So Dr. Ravi has also delivered many of the lectures about materia medica, history of homeopathy, and various topics at many UG and PG colleges. He has also presented his works at the various national and international conferences. Also, his articles have been published in various international seminars in Moscow, Turkey, Bangkok, Dubai, Spain. He has given many presentations also over there. So today he's going to share some of his knowledge about the topic blepharospasm and also about the cases which he has cured. Also, he have more contribution in homeopathy, like he have many of the journals of national and international repute. And many of you know who are connected to doctor. So he's also a good singer. So, Dr. Ravi, I now hand over to you. You can start the session. Okay. So today's topic is about the blepharospasm, a very different and difficult medical condition. Blepharon means eyelids and spasm. These two words get together and call the word blepharospasm. And this is a disease condition about which there are thousands and thousands of persons are suffering, and unfortunate part is that in the modern medical science, or you can say allopathic medical science, there is a no known cure. The only medication for this particular disease is some antispasmodic tablet like Pecitan, and which has no known any good effect. And also there is one injection called as Botox. Botox is an injection which is also used for the actress for their to enhance their beauty, and everybody must have heard about that Botox. And this is a injection which has its own side effect, and the longest duration for each for this Botox acts is the for the 3 months. So most of the patients which are coming to me for this particular disease condition are coming with a great ray of hope, because they have already got despaired with the multiple doses of this Botox. And why Botox? Because Botox is a botulism toxin, and that acts these are injected over the eyes, some over the different part of face, and this is also very costly, and also it has own side effect. So let me start my presentation. So this is the condition called as blepharospasm, about which I am going to present. These are the different cities and countries where I have presented my work. I am now coming. This is my team coming to the directly to now. If you will see the disease condition directly with the patient, then only you will understand the diagnosis at the once. So these are the different patients of mine. Can you see? Sometimes they need to raise their eyelids with the help of fingers.
Sometimes there is a twitching of the eyelids. This patient you are seeing, and sometimes there is a spasm. What happens when the patient feels some gritty sensation in the eyes? Most of the time, they first experience the spasm and they go to the doctor. They first go to the eye specialist and they are prescribing some lubricant eye drop, assuming that the patient must be having some foreign body in the eye, or sometimes also there is some you can say foreign body sensation, and sometimes they think that the person might have used mobile, excess use of mobile, or excess screen time is longer. That's why they are getting this spasmodic condition, and they prescribe some lubricant eye drop. But unfortunately, if the condition is exactly the blepharospasm, not the xerophthalmia, not the xerosis, then there is no effect of these eye drops. Then they visit to a neurologist, because after trying so many medicines, most of the eye surgeons send them to neurologist, and at the finally they are sometimes diagnosed with the blepharospasm, and sometimes this is also mimicking the very severe condition called as myasthenia gravis. So sometimes it is mistaken as a diagnosis as myasthenia gravis because the person cannot raise the eyelid. Sometimes there is also one medical condition about which there is this differential diagnosis, that a unilateral drooping of the eyelids, that you might have seen, that is Baba Ramdev. But that is not blepharospasm, that is ptosis, unilateral ptosis, PTOSIS. That is unilateral ptosis. So in homeopathy, I have treated many such cases with the wonderful results. Obviously, with a different medicine, obviously with the single medicine, obviously with the help of radar software. So coming to the very first case, this was my first case of my life, and this was in the year, I think, 2014, when this patient came to me from the district Bastar of Chhattisgarh, that is Naxalite area, and he came to me after trying so many medication, after visiting to the most of the important eye center, most famous eye center of the India, including Shankar Netralaya, Chennai, Hyderabad, and most of the doctors have prescribed this Botox, and 2 times he has also took the Botox. आप Now बताइए see, क्या हुआ सुबह? सर शुरू में यानी हमको बुखार है। बुखार आने पर डॉक्टर लोग बोले कि टाइफाइड का जांच कराइए। मैं जांच कराया। जांच कराने पर लोग बोले कि जो इंजेक्शन 10 लगेगा, तो मैं लगवा दिया। लगवाने के बाद सर थोड़ा सा हमको यहाँ पर यानी हर्टरी टाइप का हुआ। sometimes patient present with the photophobia as well. Photophobia is very common accompanying complaint. एक आदमी को चीज देखा, उसकी पलक ऐसी गिर जाती थी, तो वो बोला कि ऐसा नहीं है कि वैसे हो जाएगा। वो बोली नहीं अभी वैसा नहीं होगा। You can see the discomfort of this patient. मैं जब नहीं ठीक हुआ तो अप्रैल में फिर की, तो मैं यानी आँख वाले डॉक्टर वहाँ जगदलपुर बस्तर में, वो बोले मैं ठीक कर दूंगा। 4 महीने हो गया, कुछ नहीं फायदा हुआ। तो हमारा भतीजा रहता है यहाँ इलाहाबाद में, वो इलाहाबाद में बोला कि आप आ जाइए यहाँ दिखला। तो मैं वहां पर आया। वहां पर आने पर डॉक्टर प्रकाश खेतान, ये यानी मैं आपको ये जर्नी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि सभी पेशेंट की जर्नी इसी तरह की होती है। और रहा तो मैं जब सवेरे में फिर उनके पास गया हम लोग, तो वो बोले कि अच्छा इसको बंद कर दीजिए। सर हमको इतना तनाव हो रहा है, ये जो है बहुत दर्द है। तो वो एक दवा लिखी जिससे हमको थोड़ी राहत। उसके बाद वहां पर लोग बताए पंकज गुप्ता, तो पंकज गुप्ता को दिखलाए, वो हमको 3 महीने की दवा लिखे। तो 1.5 महीने की दवा पहले मैं लिया, और मैं फिर छत्तीसगढ़ चला गया। छत्तीसगढ़ जाने के बाद यानी वो जो दवा जब खत्म होने लगी, उससे भी थोड़ा सा राहत मिला। That is lubricating eye drop. पूरा राहत नहीं। तो जब मैं डॉक्टर के पास आया यहाँ, तो डॉक्टर साहब स्वयं अपना इलाज कराने शायद कहीं बाहर चले गए, वो नहीं फिट हो पाया। तो जो उनके कंपाउंडर उसको इसी दवा को फिर ले जाइए। उस दवा को मैं लिया गया, उस दवा को खाने की कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ, फिर मैं
यानी वहाँ रायपुर में लोग बताए कि एक न्यूरोलॉजिस्ट है संजय शर्मा, उनके पास गया तो वो हमको बोटॉक्स इंजेक्शन लिखे और लोनाजेब और मैंने खाने के लिए लिखे। तो इंजेक्शन लगने पर भी सर 15-20 दिन तक थोड़ा थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर चालू हो गया। इसकी वजह से दिक्कत क्या होती है आपको? ये दिक्कत यही होती है, ये सब मन तनाव होता है, तनाव होने से जो दर्द वो तक कहा रहता है। इसके बाद उससे जब नहीं फायदा तो वो बोटॉक्स इंजेक्शन, वो 3 इंजेक्शन लगाए कि हमारी आँख का मुस्कुरा जो है थोड़ा सा कम होता He है। has already took 3 Botox injection, but there was no relief. Finally, he came to me, Visakhapatnam, Sankar Nethralaya, Chennai. वो भी न्यूरोलॉजिस्ट है। वो बोले मैं डॉक्टर संजय शर्मा के से सहमत हूँ और लोनाजेब के बाद लाइओक्सेन कि मैंने दोनों दवा खाइएगा। मैं खाता रहा लेकिन सर कोई लाभ नहीं। कोई भी दवा खाता हूँ तो 2-4 दिन लाभ रहता है। Now coming to this is the prescription of the doctors where they have diagnosed this condition as essential blepharospasm. You can see, and this is the reproduction chart of this patient. बड़ा खास बात है, बहुत अच्छी बात इस पेशेंट में और किस केस में ये थी, आप अगर रोडार का रिपोर्टेशन चार्ट देख पा रहे होंगे, eyes spasms, ailment from fright, timidity, anticipation, lack of vital heat and face convulsion spasm, चेहरा भी खींचता था। क्या खास बात थी, ये छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट एरिया में वन दरोगा की पोस्ट थी। वन दरोगा एक ऐसी पोस्ट होती है जो जंगल में बहुत दूर तक अंदर जाते हैं और वो नक्सलाइट एरिया में जाते हैं। इनको रिस्क ये रहता था कि अगर नक्सलाइट को, अब तो नक्सलाइट आंदोलन खत्म होने के कगार पे है, लेकिन उस समय बहुत चरम पर था और उनको जरा भी शक हो जाता था कोई भी सरकारी आदमी मेरी मुखबिरी कर देगा तो उसको तुरंत वो लोग मार देते थे। तो ये अब या तो ये नौकरी छोड़ दें, तो नौकरी छोड़ दे तो भूखे मर जाएं, और नौकरी ना छोड़े तो जान से। तो बहुत ही मानसिक तनाव में रहते थे, इसलिए मैंने इनकी रूब्रिक दी थी एलिमेंट फ्रॉम द फ्राइट। हर समय इनको डर लगा रहता था, नॉट द फियर, एलिमेंट फ्रॉम द फ्राइट, टिमिडिटी, एंटिसिपेशन और साइलिशिया नाम का दवा का हमने ट्रांसफर इनका किया था अपने सेंटर से। और ये देखिए इनका 5 मार्च 2024 में कितना परसेंट आराम मिला? 60% 60% ही was better। अच्छा, अभी भी कुछ चिंतित होते हैं तब होता है? कोई चिंता हमको कोई नहीं रहती। अच्छा, नहीं, हाँ गाड़ी मोटर जैसे मान लीजिए एक मोटरसाइकिल पर बैठ के जाता, उठा जाते। बाकी वैसे दिन में अगर काम कर रहे हैं तो नहीं, ऐसे लिखूंगा पढ़ूंगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे बैठे रहूंगा तो। अच्छा, लिखने पढ़ने में कठिनाई? और पहले भी वैसे ही था, ऐसे लिखने पढ़ने नहीं मिलता। हाँ, लेकिन ऐसे, लेकिन पहले तो सर बहुत पहले नहीं। So this was the follow. Now coming to the next follow. कैसे रहे आप? सर ठीक क्योंकि आप इतनी देर से बैठे हैं, हमने तो देखा एक बार भी नहीं लपक रही, एकदम आराम हो गया कंप्लीट। हिंदुस्तान के सभी कोनों में दिखा दिया है। जी, बहुत जगह हमने हैदराबाद, विशाखापट्टनम, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, रायपुर, सब जगह पर हमने दिखाया और एक डॉक्टर दिखाया आपके लखनऊ। लेकिन आप भी दवा हमको एकदम बिल्कुल आपके। अगला फॉलो पे देखिए, क्या फॉलो में खास बात है। आमतौर पे पेशेंट कहते हैं ना कि कुछ दिन के लिए आपको फायदा हो गया होगा, थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया होगा। ये पेशेंट मुझे 2023 में, 2015 के बाद, उनका ट्रीटमेंट 2015 या 16 में मैंने बंद कर दिया। 2023 में मेरे पास 8 साल के बाद फिर दिखाने आए। एक बार लखनऊ आए थे तो मुझसे मिलने आए, धन्यवाद देने के लिए। ब्लेफारोस्पाज्म के मेरे पहले केस से, आपके पहले मैंने कोई केस नहीं देखा था। ब्लेफारोस्पाज्म 1-2 केस हमने बलरामपुर में ट्रीट किया था, लेकिन वो ज्यादा दिन तक चला नहीं, बहुत ज्यादा दिन तक उसमें वो नहीं हुआ। फिर आपको हमने देखा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि मैं बहुत परेशान। अरे हमारे पास जानते हैं, ये जो ब्लेफारोस्पाज्म के लिए लोग आते हैं 10-10, 12-12, 15-15 इंजेक्शन लगवा के आते हैं। एक बोटॉक्स नाम का इंजेक्शन है, 15,000 रुपए का लगता है और 3 महीने काम करता है मैक्सिमम। सर हमारे एक दिन भी काम नहीं। अच्छा, 3 बोटॉक्स लग चुके हैं? अच्छा, 3 लगवाया था, बस आज लगता था, आज दूसरे दिन फिर वैसे ही हो जाता था।
So Botox is also not the solution for this disease. Coming to the next case, this is a case from the Khagaria, Bihar, and he came to my clinic. Unfortunately, I was not present at that day, and I was at a seminar. But case was recorded at the clinic. हाँ हाँ 6 महीने के बाद अगर जरूरत लगी तो हम बुलाएंगे, नहीं तो फिर आपको ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट करते रहे। चेहरे का भी होता है, दबाइए मत, चेहरे को दबाइए मत, जैसा हो रहा है ऑलरेडी। अमन उसमें लिखना वीडियो ऑडियो और सेट करने के लिए काम था नर्स ने कर दिए सर। तो हमने इनका ट्रांसफर स्टार्ट किया। नक्सान का ट्रांसपोर्टर थे बहुत सारे जी। के साइड। क्या प्रॉब्लम है आपको? दिस वाज द फर्स्ट कंसल्टेशन। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, अगले झटके बाद खाना खा रहे हैं, रात से पानी पी रहे हैं, ठीक है, वैसे चलने बुलने लगा है। So this was the case, and by profession he is providing transport service to the commodity. He has anxiety for his child who was currently unemployed. He said, "पैसा रहेगा तो life में सब कुछ मिलेगा." With his hard work, he expanded his family business, workaholic and dedicated towards his work. Soon told that for last 10 years he expanded his business, and that he created a lot of stress. And so you can see these are the rubrics: industrious, anger, contradiction, obstinate, fastidious, careful, and eyes spasmodic. Naksamka was transmitted. And कैसे हैं आप? हेलो, हाँ बोलिए, कैसे हैं आप? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आंखें कैसी हैं आप? 2 महीनों से 2 महीनों से हाँ मन में घट रहा है, नहीं बढ़ रहा। अच्छा। डिस्टिल कंडीशन है। हाँ, और उसके बाद मैंने इनका सुबह ये और फॉलो अप कैसे हैं आप? जिसका अभी 80% बेटा कैसे हैं? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? पहले से ठीक है, मिला जुला के 80% ठीक है। 80% ठीक है। Now coming to the next case, and this is a case from Nepal. She also undertook treatment from the various eye center from the Kathmandu and different part of Nepal. And she was sent to me by one of my grateful patient who suffered with the blepharospasm and got cured. There are different cases which I have cured. Only selected cases I am presenting here. क्योंकि जो केसेस मैं कभी पिछले सेमिनार में प्रेजेंट कर चुका हूँ, यूजुअली मैं उसको अवॉइड करता हूँ। तो ये केस है, और इसको देखिए कि 3 बार बोटॉक्स इंजेक्शन लग चुका था। जब उसके साइड इफेक्ट इनको उसका फायदा होता था। देखिए पिछले केस में जो मैंने उनका दिखाया था, जो फर्स्ट केस मैंने दिखाया था, उनमें एक रत्ती फायदा नहीं होता था उनको बोटॉक्स लगाने से। इनको फायदा होता था, लेकिन इनको दिक्कत क्या होती थी कि इनको उसके साइड इफेक्ट होने लगे। हो सकता है जैसे प्लस नेपाल में इतना दिखाया था, इसका लगा हुआ है। 3 बोटॉक्स लग चुके हैं। अच्छा, जो फर्स्ट वाला था वो सही काम किया। नहीं, एक्चुअली यही होता है, पहला वाला कुछ दिन काम करता है, अगला वाला से कम, और उसके बाद में काम करना पड़ता है। 3 बोटॉक्स लग चुका है। लास्ट बोटॉक्स कब लगा था आपको? इसी पे इग्नेशिया का ट्रांसफर चला था इनका। आप रिप्रोडक्शन चार्ट अगर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आई फोटोफोबिया की वजह से दिक्कत हो रहा है, और आंखों में सूजन सी हो गई है, और जो बड़ी बनते हैं तो दिक्कत होती है बोलने में। लेफ्ट साइड में नो, काफी दिनों के बाद ये मेरे पास दोबारा एक बार क्लिनिक पे आई। ये आई थी 19 मार्च 2025 में। आपने आप नॉर्मल रूटीन काम कर रही हैं घर के सब बिना किसी दिक्कत के? ठीक है। कैसे इतना दूर जाता है नेपाल तक दवाई हमारा? पता नहीं, वही तो सब लोग कहते हैं कैसे हो रहा है। आपने बोटॉक्स का लगाया? मेडिसिन एनर्जी ट्रांसफर थ्रू 3 बार बोटॉक्स लगाया और फायदा नहीं हुआ, और दिक्कत हो गया, और दिक्कत हो गया था बोटॉक्स। जैसे अभी ये झुका हुआ है ना, ये बोटॉक्स के कारण से शायद झुका हुआ है। बोटॉक्स से साइड इफेक्ट भी होते हैं, और दूसरा पेनफुल कंडीशन होता है, महंगा होता है, सब तो उसकी बुराई है। हाँ, कमिंग टू द नेक्स्ट केस, जनार्दन क्या प्रॉब्लम है आपकी? ही इज अ वेटरनरी सर्जन जी। फ्रॉम हसन कर्नाटका। Hello. Yeah, I'm listening. Yes, tell me.
sleeping tendency was there. While riding the bike, I used to get sleep. So I consulted eye doctor. He suggested it can be because of dry eyes. They gave The usual scenario. after 2 months I didn't get a result. So once again I consulted one more doctor. Same thing. He also said eyes have no problem. You are having a dry eye. You continue this one medication. So I continued, but this blinking was there. That time also blinking was there. After that, I didn't get any result after 2 months. So I consulted Ayurvedic doctor. They gave eye massage. They told that this is because of blepharospasm, and they gave eye massage. Now you can see how the condition was bothering him. Now coming to the next slide, I have transferred the Naksamika. Sorry. This was not the Naksamika. Okay? This was the case of this veterinary surgeon. And now coming to the Good morning, sir. कैसे हैं आप? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग कैसे हैं? Left side eye is completely okay, sir. ओके Right side eye 20% is okay, sir. 20% I can open. 20% remaining. I can open. No, 20% I can open. So this was the case of calcarea cough. This was a spasm eyelids, frightened easily. ये हम रूब्रिक उन लोगों में लेते हैं जहाँ पे जो छोटी बात से बहुत डर जाते हैं, तो यहाँ पे लिया जाता है frightened easily, alien from duty, too much sense of, alien from deceived being, helpless feeling, anxiety about future. So these are the rubrics which I have taken, and you can see. How are you? Sir, fine, sir. Both the eyes are open, sir, actually. Both eyes are open. आपके चेहरे पे नीला नीला कैसा है? जरा सा चेंज कीजिए देखा. So this is the last and latest follow. हैं आप? Sir, okay, sir. 98% okay, sir. 98%. अब 2% में क्या बचा हुआ? थोड़ा कभी थोड़ा ऐसा होता है, सर. अच्छा, अब अपने आप डेली एक्टिविटी, डेली लाइफ रूटीन सब काम कर रहे हैं आप? सभी कर रहे हैं, सर. कोई दिक्कत नहीं होती? ड्राइविंग कर रहे हैं आप? हाँ, ड्राइव कर रहा हूँ. अच्छा, नींद में कोई दिक्कत किसी तरह का आपको? यूजुअली हम ब्रेकफास्ट पास के पेशेंट्स को ड्राइविंग अच्छा, मना आप आपको करते हैं. देख कोई आइडेंटिफाई कर पाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम था आंखों में? पहले कभी नहीं था, सर. हाँ, अभी थोड़ा वो नियर साइट हो रहा है, सर. नहीं ये हम नहीं पूछ रहे हैं. जैसे क्या होता है कभी कभी, जैसे आपको आम आदमी जो आपको पहले नहीं देखा है, तो आपको देखेगा तो जान जाएगा कि आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है. तो जैसे पहले था तो बहुत आंखें आपकी भिजती थी, अभी नहीं ऐसा नहीं होता, सर. बहुत बढ़िया. So this is ठीक the है. result of homeopathy. And he is still under treatment. Now coming to the next case. नमस्कार जी. This is a क्या case problem है? from Himachal Pradesh. And जो आइस है ना सर, ये पल की जो चिपकती रहती है बार बार. कब से हो रहा है आपको हाँ जी. प्रॉब्लम? नमस्कार जी. so this was the case, and I have transferred the calcarea cup 0/1. You can see the different cases are reportized. देखिए रिपोर्टाइजेशन ऐसे नहीं है, हम लोग पूरा डिटेल में केस हिस्ट्री करते हैं. 1-1.5 घंटे की केस हिस्ट्री होती है पेशेंट की. एक चीज पूछते हैं, देखते हैं, फिर उसके लिए दवा का चुनाव करते हैं. केवल मैं रिपोर्टर क्योंकि एक केस मैं वैरायटी ऑफ द केसेस इसलिए दिखाना चाहता हूं आपको. मैं चाहूं तो एक केस को भी आपको 1-1.5 घंटा एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन वैरायटी ऑफ केसेस इसलिए दिखाना चाहता हूं कि आप ये समझ पाए कि बहुत सारे पेशेंट में डिफरेंट मेडिसिन के द्वारा ये बीमारी ठीक होती है. मैं कोई ऐसा नहीं कि सिंगल केस मैंने ठीक कर दिया उसमें एक्सीडेंटली क्योर हो गया. तो इसीलिए मैं वैरायटी ऑफ द केसेस दिखाना चाहता हूँ. ये सारे केसेस मेरी वेबसाइट पे भी पड़े हुए हैं. तो दिस वाज द केस. 60% बेटर हुआ. बोलिए कैसी हैं आप? कोई करूँ सर? हाँ. ठीक है सर. कैसी हैं आप अभी? ठीक हो सर, ऐसे तो पहले से बहुत बेटर है. हाँ, आपका ब्लेफरोस्पाज्म का प्रॉब्लम था ना? So this was the condition and this was the कैसी last हैं? follow. काफी ठीक है सर. उसके बाद फिर मैंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया था ना? और फिर बीच में ट्रीटमेंट हाँ जी, हाँ जी. हमारे इलाज लेने के पहले
अभी तो पूरी आंखें वैसे आपकी खुली हुई हैं। हमारे इलाज लेने के पहले आपको क्या क्या दिक्कत होता था इसमें आंखों में? आंखों में मेरी आंखें ऐसे पलके झपकती रहती थी ना सर, तो उससे आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम आती थी जीवन में से? तो वो उससे काफी दिक्कत भी आती थी, जैसे कहीं भी जाए तो फिर इसकी वजह से मतलब खुद भी नहीं रह पाते वहाँ, कहीं जाने मतलब मन नहीं लगता कहीं जाने। सबसे इम्पोर्टेंट फीलिंग जो होती है एनवन फ्रॉम एम्बरासमेंट जो होती है, लेकिन उस फीलिंग को हम नहीं लेते हैं कहीं भी क्योंकि आउट ऑफ सिचुएशन नहीं, किसी की भी आंख झपकेगी, आंख जब मारने जैसा लेगा उसको सामने लोगों के एम्बरासमेंट हो गए। क्या होगा, क्या तो रूब्रिक्स क्या होता है ना, आप जब भी रूब्रिक्स लेते हैं तो उस रूब्रिक को आउट ऑफ प्रोपोर्शन होना चाहिए। एक आदमी को नॉर्मल गुस्सा आ गया, आप उसने तो उसको आप नॉर्मल में नहीं लेते, अगर वो कंडीशन आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगी तभी उसको हम एज ए सिम्टम लेते हैं। तो ब्लेफरस स्पाज्म के पेशेंट में बाहर ना निकलना, लोगों के सामने समाज में ना जाना, ये एक जो एम्बरासमेंट की फीलिंग है नेचुरल है, इसलिए हम उसमें इस रूब्रिक को नहीं लेते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट केस, दिस इज अ केस फ्रॉम पिछले 1 साल से आंखों का प्रॉब्लम है। 1 साल से क्या परेशानी होती है इसमें आपको? थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में बोल रही है, पलक गिर गई नीचे। अच्छा, ताकन दिक्कत पड़े, चले फिरे में दिक्कत आते हैं। हाँ, तो ये बीमारी की वजह से आपका क्या दिक्कत हो रहा है? देखने बोटॉक्स कभी लगवाया है आपने? नहीं है बोटॉक्स के लिए हाँ, सभी वही रेफर किया होगा, वही याद रखा है। लेकिन साहब ने ये भी बताया होगा कि इसका इलाज नहीं है, केवल टेम्परेरी सोल्यूशन है। अच्छा, जो है मतलब इस हॉस्पिटल को हो गए कभी जो है वो देखते थे, कभी वो देखते थे, ले गए इनको मनोहर दास को दिखाया इलाहाबाद में। वहाँ पर एक आरती मैम बैठे थे, फाइल देखा, हर एक चीज पर काटने थे वाले जो पहले जो 1.5 महीने दवा किए, इसके बाद इसका फैलो था ना पोटाश इंजेक्शन। बाकी बोटॉक्स से भी ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ठीक तो नहीं होता है ना। नहीं होता, वो तो दवा अच्छे से होता है, बहुत ज्यादा जब पोड़ों से बंद मैंने इनका ट्रीटमेंट किया और एक देखिए बीच का फॉलोअप है, देखिए गांव से उन्होंने अपना वीडियो भेजा, थोड़ा सा फायदा हुआ था, केवल कैलकेरिया का आपका ट्रांसफर इनका चला था। देखिए चेहरे पे भी है स्पाज्म, आप देख पा रहे होंगे। ब्लेफरस स्पाज्म के साथ हेमीफेशियल स्पाज्म भी हो जाता है, इसी से मिलते जुलते ये कंडीशन होते हैं जिसे कहते हैं फोकल डिस्टोनिया। डिस्टोनिया में भी इसी तरह से कंडीशन में प्रॉब्लम आती है। हेलो हेलो, हाँ जी, डॉक्टर रवि से बात हो रही है? कौन बोल रहा है? सर रिपोर्ट से बात कर रहा हूँ नेशनल लखनऊ सेंट्रल से। So this is the last follow, latest follow, 25 नवंबर। चौंधी लागत है, चौंधी का मतलब बाकी जैसे पहले आ रही है। कवरों में बैठी तो ताकिया मुदा जाता है। हाँ, पलक इनकी उठती नहीं थी। हाँ हाँ डॉक्टर साहब हाँ हाँ हाँ, आज बहुरी आई वही रोटी दे तुमका। हाँ, So coming to the next case, this is a case from the United Kingdom. A patient from the United Kingdom and who is originally from the Amritsar, but she is living at the United Kingdom. And on the left side, you can see this patient also underwent Botox injection. She was examined and advised in Botox injection. When she first contacted him from the England, see her condition. डॉक्टर साहब नमस्ते। इतने दिन में इतनी आंखें आपकी परेशान कर रही हैं, चमक लग रही है आपको? हाँ जी, बहुत ज्यादा होने लग गया, मतलब 6 महीने हो गया ना, लगवाया था इंडिया से, दिल्ली से लगवाए थे बोटॉक्स। जैसे ज्यादा चल गया, यूजुअली बोटॉक्स 3 महीने से ज्यादा नहीं चलता, 6 महीने। हाँ जी, वो उन्होंने कहा, जो जिस डॉक्टर से लगवाए थे उन्होंने कहा था 6 महीने तक चलते हैं। और यूजुअली पेशेंट तो यही बताते हैं यूजुअली 3 महीने तक काम करता है।
लेकिन उन्होंने और बताया होगा ना उंगली से इसका इलाज नहीं है, बोला हाथ लगाकर मैनेजमेंट पानी आप उठा रही हैं। हाँ जी, ये भी डॉक्टर ने बताया, ये जैसे टेम्परेरी सा इलाज है, ऊपर ऊपर से, अंदर से कुछ नहीं, मतलब जड़ से खत्म करने वाला टाइप नहीं है। हाँ जी, बहुत मुश्किल होती है डॉक्टर साहब, कुछ भी नहीं कर सकते, घर के काम, बाहर जाना, कहीं पर कुछ भी नहीं हो पा रहा। ठीक है। अभी 3-4 अच्छा, दिन एक पहले चीज मेरे पास आपके मन में आया पेशेंट आया था इतने दिनों में कि ये जो ड्राइविंग करते मुझे हुए लड़ा क्यों हो गया। हाँ जी, वो तो आता है, कोई डॉक्टर भी नहीं जवाब दे पा रहे, फिर मैंने सोचा चलो भगवान की जो मर्जी है, मतलब जो किस्मत में ऐसा नहीं है, भगवान की मर्जी आपको खराब करना थोड़ा है। हाँ, ये बीमारी एक कारण से होती है जो हमने देखा है अपने पेशेंट्स में, बहुत सालों से मैं पेशेंट्स इसके देख रहा हूँ, और इसके पेशेंट्स थक हार के मेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं। हाँ जी, तो हाँ जी, इस बीमारी होने का केवल एक कारण है। 2018 में जब यह चालू हुआ, लाइफ में कोई बड़ी चीज, कोई बड़ी घटना, कोई बड़ा स्ट्रेस रहा है जिसने आपको काफी दिनों तक मानसिक रूप से परेशान किया है, तभी ये हुआ है। हाँ जी, कोई स्ट्रेस से ही शुरुआत हुई थी। हाँ, तो अगर इस बीमारी पे विजय पाना चाहती है, किस तरह से हम तो पहला काम ये करना होगा, करना स्ट्रेस से दूर रहना होगा। कमिंग टू द केस, दिस आर द घर में, परिवार में बहुत सारे झगड़े थे, एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, इनको अल्टीमेटली यूके शिफ्ट करना पड़ा, डिक्टेटोरियल, लॉकसिटी, हिस्ट्री, पर्सनल, ड्रीम डेड ऑफ eyes spasms. Step Sagre was the medicine which I have selected and transmitted with her hair. हाँ जी, कैसी हैं आप? हाँ जी डॉक्टर साहब, ठीक हूँ। करीब 1 महीने बाद आपके इस आई के इस बात में आपको क्या फर्क पड़ा? हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको भी बता रही थी कि हाँ जी, अब आ रही? हाँ हाँ जी, तो वो ना जो आंखों के अराउंड थोड़ी ड्राइनेस होती थी ना, कई बार थोड़ी होती थी, कई बार बहुत ज्यादा, सुबह उठ के ना बहुत ही ज्यादा होती थी, तो उसमें काफी फर्क है। तो ड्राइनेस अब नहीं होती है, बहुत कम होती है, जैसे ना के बराबर। अच्छा, तो कई बार ड्रॉप डालने रह भी जाते थे। जो स्पाज्म आता था उस पे क्या फर्क पड़ा है? हाँ जी, वो भी फर्क हुआ है, मतलब आगे से अभी है, लेकिन क्या कहते हैं, कम है आगे से। तो क्या कहते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करना पड़ता है, लेकिन आगे से काफी कम है। आपने पिछली बार जब देखा था, आप नोटिस कर ही सकते हैं ना। हाँ जी, इतनी बड़ी बात है ना, लखनऊ में बाल आपका लगा है और लंदन में आप बैठी हैं, और आपका वहाँ इलाज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अब समझ में आया हाँ जी। कैसे इलाज होता है। now coming to हेलो the डॉक्टर साहब। life follow-up next. कैसे हैं आप? हाँ जी डॉक्टर साहब, ठीक ठाक है। आप सुनाए, काफी फर्क लग रहा है डॉक्टर साहब। फर्क लग रहा है कि अब ठीक हो गया? क्या बचा है? हाँ, ठीक का तो मतलब पता क्या है, बस चमकने वाली वो चीज है ना नॉर्मल, वो नहीं अभी हो रही, उसके अलावा काफी फर्क है। जैसे थोड़ा भीड़ में भी। आप चल फिर रही हैं, पब्लिक में आराम से जा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, बहुत कम अब ऐसे करना पड़ता है, जैसे आंखों को हाथ लगाना या टच करना। इसके बाद भी कुछ फॉलो है और ये पूरी तरह से ठीक है। पहले आपको जब हमारा ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी, तो आप पब्लिक में जब जाती थी तो क्या? Come to the next case. This is a case of a student from the Lucknow. Now see the condition. किस तरह से इसका स्पाज हो रहा है। दो साल से इसको था। इसके पिताजी थक गए, सब जगह दिखा दिखा के, लखनऊ के सारे आई सेंटर में दिखा दिखा के थक गए, पढ़ नहीं पाता था बच्चा, साइनस का भी प्रॉब्लम था, डस्ट एलर्जी था, इनहेलर लेता था बच्चा। कैन यू सी? बहुत ज्यादा हुआ, पेपर नहीं दे पा रहे थे, मतलब दिया हूँ बहुत ज्यादा, तो आधे साल तक तो उससे चला गया। 3 घंटे का पेपर था, तो आधे साल तक तो आप 3 घंटे के पेपर में 1.5 घंटे इसका चले गए खाली आंख की प्रॉब्लम की वजह से। देखिए पहली बार जब ये मेरे पास आए हैं, कोई बिहार नहीं छोड़ा वो लखनऊ का। चलिए होम्योपैथी में आइए, होम्योपैथिक शरण में आइए तो ठीक। हाँ, कोई विधान नहीं छोड़ा। ठीक है, हम देख इसको भेज दें। This was the statement. Calcarea cover the medicine. Eyes spasm, lids, activity, desire, timidity,
इम्प्रेशनेबल, जो तुरंत आपकी बातों में आ जाएं या छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाएं, उस रेमेडी को कहते हैं, उसकी रूब्रिक कहते हैं इम्प्रेशनेबल। आई विंकिंग, आई ड्राइनेस, नोज एपिस्टैक्सिस, कैलकेरिया का बस ट्रांसलेट बताना बड़ा कठिन हो जाता है। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आँख सब फर्स्ट क्लास। अभी हाँ सर, जैसे आप लेकिन जैसे कभी और बीच में जब थोड़े स्ट्रेस हो जाता है बहुत थोड़ा सा, तब यहाँ बस इस लेफ्ट आई में नहीं होता, बस राइट आई में होता है थोड़ा सा। और जैसे अब ट्रीटमेंट से पहले सांस बहुत ज्यादा फूलने लगती थी जैसे सीजन चेंज होता था, लेकिन तब से मेरा ट्रीटमेंट चलना शुरू हुआ है, तब से यहाँ अपना वाली प्रॉब्लम्स कम हो गई है, मतलब खत्म ही हो गई ऐसे। आपने वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई? लेकिन जो साइनस की प्रॉब्लम थी, नाक में जो नेजल पॉलिप वगैरह था, वो सब रेडनेस रहती है, लेकिन जो वो पॉलिप जो से फूल जाती थी वो नहीं फूलता है, लेकिन साथ में जो आजकल थोड़ी सी दिक्कत होती थोड़ी सी। और सर ये जब से पहले जैसे अभी यहाँ करने वाले हैं, पहले यहाँ पे करने बाद हुआ करता था, धीरे धीरे पतले होने लगे हैं। आप प्रोटीन का कंटेंट डाइट में बढ़ा दीजिए, सबसे अच्छा स्प्राउट्स खाए कर ये ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक, प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाइए, देखता हूँ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फॉलो विद द कैलकेरिया का। हाँ कंप्लीटली ठीक हो गया, किसी तरह का कोई ब्लिंकिंग नहीं होता है, रात में भी नहीं और पढ़ने में भी कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया। और आपका एक और प्रॉब्लम है स्टेमरिंग ना, और कैसा है? ट्रैवलिंग में मतलब 50-50 चल रहा है। अच्छा, कभी कभी हो जाता है, कब ज्यादा होता है? कुछ घबरा जाते हैं तब होता है क्या? हाँ जैसे दोस्त लोग से बात करता हूँ तो हाँ। वो थोड़ा ज्यादा तेज से बोल लेता हूँ, जैसे कोई सवाल पूछना रहता है तो उसमें ज्यादा जल्दी कर देता हूँ, या फिर कभी कुछ ऐसी बस कुछ। अब ये लड़का अपने स्कूल मेट्रो से चढ़ के जाता है, पहले इसकी इतनी सांस फूलती थी कि दिन भर हमेशा अपने साथ इनहेलर लिए रखता था। आप अभी देखिएगा इनहेलर के बारे में बताएगा। छूट गया, बस उसको बैग ले जाता हूँ कुछ। कितना दिन से इनहेलर नहीं लिए? 1 महीना 4 दिन, 2 टाइम। पहले मैंने एक टाइम बंद किया 15 दिन। हाँ। जिस टाइम में छोड़ा था बहुत ज्यादा उमस था, उमस में तो ये 6 साल छोड़ा हूँ मैं 6 साल। और कितने दिन से ले रहा थे? 6 साल का इनहेलर होम्योपैथी के द्वारा छूट गया, साथ में ब्लड प्रेशर तो ठीक ही हो गया। बड़े रेस्ट्रिक्टेड डॉक्टर है, उन्होंने कहा इसको चालू रखिए, वो भी दोनों टाइम। एक कहावत सुनी होगी आपने कि दवा दम के साथ जाता है। जी सर। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, होम्योपैथी से ठीक हो जाता है। जून आने के बाद मतलब मानसून कैसे लास्ट फॉलो सब बढ़िया, सांस तो नहीं फूलता, इनहेलर नहीं लेना पड़ता। इस साल दिवाली में तो खूब पटाखे लगे तब भी इनहेलर नहीं लेना पड़ा ना? नहीं। बहुत बढ़िया। और आंखें भी ठीक हो गई आपकी कंप्लीट? कंप्लीट है सर। छठ के दिन रात गए थे तो बड़ा एपीडीएस स्किन था, तो कुछ सेकंडों के लिए थोड़ा सा में वो हाइपर होने के मतलब एक्साइटमेंट। दिस वाज माय प्रेजेंटेशन। और भी बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास। अभी एक केस मैं आपके सामने अगर शेयर करूं, ये पेशेंट भी देखिएगा, बड़ी सीवियर कंडीशन में पेशेंट थे मेरे पास। इसको इसी से मिलती जुलती एक कंडीशन है, इसको टॉरेट सिंड्रोम कहते हैं। टॉरेट सिंड्रोम, ब्लेफरोस्पाज्म, मीक सिंड्रोम सब मिलती जुलती, सब भाई बहन है, सभी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। देखिए इसी पेशेंट को देखिएगा, बहुत बढ़िया। अभी तो पूरी आंखें खुली है बढ़िया से आपकी। अगर धूप में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, नहीं तो पहले मैं धूप में खोल नहीं पाता था आके। अभी मतलब हॉस्पिटल भी जाता हूँ और मतलब कार भी आराम से ड्राइव कर लेता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। और मतलब डिप्रेशन भी 1 साल से सही है, और स्लीप भी मतलब आ जाती है अपने आप, इवन बिना मेडिसिन के भी आ जाती। कभी कभी तो भूल ही जाता हूँ कि मेडिसिन लेनी है स्लीप की कोई। इससे अच्छा और क्या चीज हो सकता है? और जानते हैं, जैसे जैसे आपका डिप्रेशन और माइंड जैसे जैसे ठीक होगा, वैसे ही आंखें आपकी और ठीक होती जाएंगी। आंखों का संबंध है, और ये चीज मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बोला है, और आपने भी महसूस किया होगा कि जब जब आप स्ट्रेसफुल ज्यादा रहते होंगे तब तक आंखें आपके
आंखें ज्यादा गड़बड़ कर रही हैं। बिल्कुल 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 स्ट्रेस बिल्कुल। का ब्लेफारोस्पाज्म का स्ट्रेस से बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंध है, जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा ब्लेफारोस्पाज्म। So this is another case. अभी इस बीच में मेरे पास कुछ केसेस और आए हैं और इतने अच्छे ठीक हो रहे हैं वो केसेस। एक केस तो अभी वो अपना चल नहीं पाता था और उनको इतना अच्छा फायदा हुआ कि अब वो मोबाइल अपना रिपेयर करते हैं। इस केस को मेरी वेबसाइट पे भी मैंने अपने डाल रखा है। अगर आप मेरी वेबसाइट को देखेंगे raviclinic.com, ये मेरी वेबसाइट हो गई। इसके केस स्टडी सेक्शन में जाएंगे। ये केस मेरा बहुत पुराना बहुत अच्छा केस है। ये यहीं पास का केस था शाहजहांपुर का और ये 100% ये केस ठीक हो चुका है। ये सारे केसेस मेरी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं और इनको एम्स के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। इनकी आप रिपोर्ट में देखेंगे, इनको एम्स में डॉक्टर ने कह दिया था आपको बोटॉक्स के अलावा कोई उपाय नहीं, चाहे जिंदगी भर आप बोटॉक्स लगाओगे तभी ठीक नहीं होगे। एम्स का ही ओपीडी का कार्ड है और ये जो डिजीज कंडीशन है ब्लेफारोस्पाज्म। ये मेरे पास एक पेशेंट है जापान की, ये पेशेंट नेपाल के हैं, ये भोपाल के हैं, ये हैदराबाद के पेशेंट है। ये पेशेंट का केस मैंने आपको दिखाया है। बहुत खराब पेशेंट को मैंने इस बीमारी के इस पेशेंट को, ये हैदराबाद का पेशेंट है जिसमें लंदन में रहते हैं। ये पेशेंट पहले चल नहीं पाते थे, अब गाड़ी चलाते हैं आराम से। आप इस केस पेशेंट को देख पाएंगे। और ये बढ़िया से आप अपना ड्राइविंग भी कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं अपना। एक केस और है अभी, जिनकी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप थी, उनका तो धंधा ही चौपट हो गया क्योंकि जो मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा है उसकी आंखें ना खुले। अब ये आप देख पा रहे होंगे किस तरह से आंखों को उन्होंने उंगली आके खुला हुआ है। देखिए उंगली लगा के खोल रहे हैं आप। और ये इनका लास्ट वीडियो देखिएगा, ये अपना मोबाइल रिपेयर करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है, उसी शॉप से। So these are the different cases which I have tried to एक्चुअली मैं कभी भी पेशेंट को कोई भी खाने की दवा नहीं देता हूँ। इसको पहले आपको समझा दूं कि मैं अपने सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट एक डिफरेंट तरीके से देता हूँ, जिसे कहते हैं मेडिसिन एनर्जी ट्रांसफर। पहला तो मेथड क्या होता है, एलएम पोटेंसी जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप रिपीटेड डोज में देते हैं, पर डे 1 बार 2 बार 4 बार उसको पेशेंट को जग करके लेना पड़ता है। लेकिन ये जो मेथड है, जिस मेथड से मैं सारे पेशेंट को ट्रीट करता हूँ, इसे कहते हैं मेडिसिन एनर्जी ट्रांसमिशन। इस मेथड में हम क्या करते हैं, उस मेडिसिन को हम ऐसे एक कांच की शीशी में अपने सेंटर पे लेते हैं और पेशेंट के सर का एक बाल लेके इसमें डिप कर देते हैं। और जैसे हम पेशेंट का बाल इसमें डिप करेंगे, दुनिया के किसी कोने में रोगी रहेगा, उसके शरीर में दवा पहुंचती रहती है, दवा को खाना नहीं पड़ता है। तो ये एक मेथड है जिसका मैं फॉलोअर हूँ। और मैं सभी जितने भी पेशेंट अभी तक आपने देखे, जो भी मैंने कैसे दिखाया, मैंने किसी पेशेंट को कोई भी खाने की दवा नहीं दी। जो पेशेंट यहाँ आ जाते हैं उनका बाल ले लेते हैं, जो पेशेंट ऑनलाइन होते हैं वो बाल अपना बाई पोस्ट भेज देते हैं। तो ये सब पेशेंट्स के बाल मेरे पास आते हैं, लिफाफे में आप देख पा रहे होंगे बाई पोस्ट बाल आते हैं। अब मैंने नोएडा में भी एक क्लिनिक खोल ली है, हर महीने में एक दिन नोएडा में बैठता हूँ। So please give us the address also. ये नोएडा में ये है जो वेव मॉल है, उसी में सिल्वर अपार्टमेंट जो, उसी में मैं बैठता हूँ 19th फ्लोर पे, हर महीने के फर्स्ट संडे को। तो So I think sector 52 के पास, नहीं, सेक्टर 18 में वेव मॉल है। वेव मॉल में सिल्वर जो है, सिल्वर लाइन, उसमें 19th फ्लोर पे मैं बैठता हूँ। मेरे वेबसाइट पे एड्रेस वगैरह पड़ा हुआ है, मेरे वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे। अगर इसको, ये मैं आपको एक बार फिर से मुझे शेयर करना पड़ेगा, अपना स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। सर आपका स्क्रीन ऑलरेडी विजिबल है। अच्छा। तो ये हमारे नोएडा के सेंटर का मेरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, raviclinic.com मेरी वेबसाइट है। सेंटर, ओके सर, ओके श्योर। व्हेन अब नेक्स्ट विजिट कब करेंगे इधर? सो वी विल ट्राई टू मीट यू। फरवरी को, फरवरी, ओके, 1 तारीख को आ रहे हैं। और खास बात क्या है, देखिए मैं रडार का बहुत पुराना यूजर हूँ। मैं 1994 से रडार इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैन यू इमेजिन? सो ग्रेट। जब 74 फ्लॉपीज में आता था रडार, तब मैं जाके कुलदीप जी से लाया था। उसमें पीएन जैन सर जिंदा थे। अभी उनसे मैंने लिया था। उसमें एक बड़ी सी की आती थी जो प्रिंटर पोर्ट पे लगती थी। और मैं यूजर हूँ।
सिंथेसिस को मैंने 5.1 एडिशन से लेना चालू किया, तो मेरे That's क्लिनिक good. में हम लोग उसकी पूरी कंप्लीट केस हिस्ट्री करते हैं। ये केसेस ऐसे नहीं जितना मैंने आप फट से बता दिया कि साइलिशिया कर दिया, इग्नेशिया कर दिया, स्टेप से क्या करते हैं। पूरी पेशेंट की डिटेल में केस हिस्ट्री होती है और उसके बाद हम इसके इमोशनल मेंटल पार्ट मैं अक्सर मैं देखिए मैंने आपको उसमें वेबिनार में भी कहा था कि जो ब्लेफरोस्पाज्म की कंडीशन इसका माइंड से सीधा संबंध है, स्ट्रेस से सीधा संबंध होता है। कोई पेशेंट में फाइनेंशियल स्ट्रेस है, उसमें कैलकेरिया के ग्रुप पे आप जा सकते हैं, या जैसा आपका सिम्टम करेगा। फ्राइड की वजह से मैंने देखिए पहला केस में आपको साइलिशिया दिया था, एक केस में घर में झगड़े थे उसमें सिस्टिक सेग्रिया दिया था, एक केस में इग्नेशिया दिया था। तो इस तरह से मेरे पास कोई रेडीमेड मेडिसिन नहीं है और ना ही मैं ब्लेफरोस्पाज्म के लिए जो मेडिसिन बनी है उस पर काम करता हूँ, क्योंकि आप ब्लेफरोस्पाज्म के आप डाटाबेस पर डालिए, इवन रडार डाटाबेस में भी ब्लेफरोस्पाज्म के केसेस नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डेड केसेस नहीं। ब्लेफरोस्पाज्म नाम की जो एंटिटी आई ना, हमको लगता है 1940 या 50 के आसपास एक किसी डॉक्टर ने इसको डिस्क्राइब किया था। इसके पहले तो बहुत पुरानी बुक्स में आपको मिलेगा ही नहीं ब्लेफरोस्पाज्म नाम की कंडीशन को। तो ये है, और मैं अपना कोशिश करता हूँ अपने पेशेंट को, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ मैं खुदा हूँ, मैं सारे केसेस को ठीक कर लेता हूँ, मेरे पास भी फेलियर केसेस हैं, लेकिन अधिकतर केसेस में मैं लगा रहता हूँ और प्रयास करता हूँ अपने पेशेंट को ठीक करने का। और सभी पेशेंट, मैं किसी भी पेशेंट को कभी भी दो दवा नहीं देता हूँ। सिंगल मेडिसिन की एक क्लिनिक है, एक ही दवा में देता हूँ, जो मैं दिखा रहा हूँ वही करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ दिखाने में कुछ करूंगा और क्लिनिक पे कुछ करूंगा। मेरे क्लिनिक ओपन है और सब मेरे पास, हमारे पास जो डॉक्टर्स टाइम टू टाइम हमारी टीम बदलती रहती है। देखिए ये टीम है, इससे हमारे सब असिस्टेंट डॉक्टर हैं। आपको ये पहली स्लाइड में आपको दिखाई पड़ेंगे कुछ, ये सब डॉक्टर्स हमारे असिस्टेंट डॉक्टर्स हैं। ये हमारे यहाँ आते हैं, सीखते हैं, मैं इनको सैलरी भी देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो मैं जानता हूँ मैं उनको सिखाऊं, वो जो वो जानते हैं उनसे मैं कुछ सीखूं। तो Exactly. Passing the knowledge to other generation. सर अभी आई थिंक एक दो डॉक्टर्स हैं, उनके एक दो क्वेश्चंस हैं। डॉक्टर अजय, he is asking what is the science behind putting hairs into the medicine? I don't know exactly. This is a method invented by Dr. B. Sahni of Patna. And for more information, you can either visit my website or there is one website called as homeoenergy.com. There is a different book. Book was published by the BGen itself, the transfer of homeodrug energy from a distance. I'm sharing you the link. This is the homeoenergy.com. This is the website. And at this particular page, transfer of homeodrug energy from a distance, Dr. B. Sahni, the inventor of this book. Yeah, Dr. B. Sahni. बीजेन पब्लिशर के द्वारा ही पब्लिश हुई है बुक और अभी भी प्रिंट पे है ये बुक। इन्होंने कोशिश किया इसको एक्सप्लेन करने की। देखिए मुझे कोई जबरदस्ती नहीं कहता कि आप बाल लगाओ, जैसे सारे डॉक्टर खाने के लिए दवा मैं भी तो दे सकता हूँ। मुझे कई बार ऐसा भी होता है पेशेंट समझ में नहीं आता, पेशेंट चले जाते हैं, कहते हैं नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, बाल से कैसे इलाज हो जाएगा। Exactly, हाँ। लेकिन मेरे पास जो कि रिजल्ट है, जो मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिए, आप खोज डाली पूरी दुनिया में। मैं बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, इसको ऐसा मत समझिए मैं कोई अपने अपने कोई बड़ाई कर रहा हूँ। रियल टाइम केसेस ब्लेफरोस्पाज्म के कहीं है ही नहीं जो ठीक होते हैं। मैंने इतने सेमिनार मैंने अटेंड किए हैं, मैंने नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार कितने अटेंड किए, ब्लेफरोस्पाज्म के केसेस कहीं देखने को मिलते ही नहीं जो ठीक हुए। रेयर टू रेयर होता है। तो जब मुझे इतनी रेयर डिजीजेस में इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूंगा कि इसका एक्सप्लेन नहीं आया है अभी। तो ऐसे मुझे नहीं कहना चाहिए। होम्योपैथी इटसेल्फ, होम्योपैथी कैसे काम करती है दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं जानता। पोस्टुलेट्स हैं डिफरेंट, एग्जैक्टली कैसे काम करती है दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं जानता। तो क्या आप करते नहीं है? अभी तो करते हैं ना। नहीं जानते हैं कैसे काम करती तब भी करते हैं क्योंकि काम करती है। मैं नहीं जानता हूं, ये वैज्ञानिकों के शोध का विषय है कि बाल से कैसे इलाज होता है। मैंने इसको जाना इसलिए मैंने अपनाया और मेरे पास रिजल्ट है। ये तो एक बीमारी है, मेरे पास हिर्सुटम डिजीज, मेरे पास CSF राइनोरिया, ऐसी सी बीमारियों के पेशेंट है ना, यू कैन नॉट इमेजिन। मैं आपको खाली एक हिंट दिए दे रहा हूं। देखिए मैं आपको एक अपनी दूसरी स्लाइड शेयर कर रहा हूं। इस डिजीज को देखिएगा, दिस डिजीज इज कॉल्ड एज CSF राइनोरिया। ब्रेन का फ्लूइड नाक के रास्ते बाहर आता है। इस पे हमारा पहले वेबिनार हो चुका है CSF राइनोरिया। आप दूसरी डिजीज कंडीशन में आपको क्या दिखा रहा हूं, एक डिजीज कंडीशन होती है उसको कहते हैं हिर्सुटम डिजीज। बच्चे का पेट का जो लास्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, वो उसमें गैंग्लिया डेवलप नहीं करती। ये मेरे केसेस हैं, रियल टाइम केसेस हैं।
इसमें 3 स्टेज की सर्जरी होती है। मैंने रियल टाइम केसेस सब ठीक किए हैं, ये सब केसेस हैं। मैं कभी दोबारा इसके बारे में वेबिनार दूंगा। श्योर सर, बिल्कुल। तो ऐसी ऐसी बीमारियों में केसेस आते हैं और ठीक होते हैं, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। ये वैज्ञानिक आगे, अभी कल परसों मुझे एक फिजिक्स का लड़का था, किसी ने मुझसे डिस्कस किया कि कैसे काम करता है, आप बताइए। हमने कहा हमारा काम थोड़ा, तुम फिजिक्स के लड़के हो, तुम बताओ कैसे काम करता है। मैं क्लिनिशियन हूँ, मेरा काम है पेशेंट को ठीक करना, कैसे काम करता है ये मेरा विषय नहीं है। ठीक, जैसे अभी जयेश बेल्लारे नाम के एक IIT मुंबई के हैं, उन्होंने बताया कि नैनो पार्टिकल मिले हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन में, तो ये उनका काम है ना, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है पेशेंट को ठीक करना, एक नया मेथड है। मैं आपको प्रपोज कर रहा हूं, मैं प्रपोज कर रहा हूं कि आप भी ट्राई करके देखिए, काम करता है कि नहीं करता। नहीं करता तो मुझे बताइए, आपने बाल लगाया, पेशेंट को नहीं काम किया, सही मेडिसिन थी और वही दवाई खिलाया और काम कर गया, ऐसा मुझे एक केस दिखाइएगा। So I'm confident enough that this Exactly. Here is the answer. In this confidence, here is the answer. Yes, it works. So, any other doctor have any question? So this question was from, I think, from 2 to 3 doctors. Same question was there. So I think you all are clear about the doubt, like how it works. So, and the one thing in homeopathy is it works mainly on the faith. जो आप faith रख रहे हैं अपना, पेशेंट आपके अंदर फेथ रख रहा है डॉक्टर के अंदर। सॉरी डॉक्टर, मैं आपको रोकूंगा, मैं इसलिए रोकूंगा, होम्योपैथी के बारे में बहुत गलत धारणा है। होम्योपैथिक दवा पर विश्वास करो तो काम करती, विश्वास ना करो तो ना ही काम करती। कृपया इस शब्द को कभी भी कोई डॉक्टर इस्तेमाल ना करे। गोली नहीं जानती है कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन है। होम्योपैथी विश्वास पे नहीं काम करती है, होम्योपैथी अपनी अच्छाई पे काम करती है। जो मैं हिस्टोन डिजीज की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल के, 2 साल के, 1 साल के, उससे विश्वास का क्या मैटर है? कैसे विश्वास से पेशेंट ठीक हो जाएगा? उससे बच्चे ने विश्वास किया क्या? और मैंने तो उसको खिलाया भी नहीं दवाई, कैसे ठीक हो गया? विश्वास की अगर खाली बात होगी तो जो मेरे पास, जैसे मैंने जो पहला केस आपको ब्लेफारोस्पाज्म का दिखाया, वो पूरे इंडिया घूम चुका था, एक एक जगह जा चुका था। तो क्या वहां के डॉक्टर पे उसने विश्वास नहीं किया था? बोटॉक्स लगवाते समय उसने विश्वास नहीं किया था? मेरा दवाई काम किया तो कहो विश्वास पे काम कर दिया? नहीं, विश्वास से नहीं काम करता। विश्वास खाली इतना करता है कि एक आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। आपका पेशेंट पहली बार आपकी दवाई नहीं पैदा की, दूसरी बार आपसे ले लेगा, तीसरी बार ले लेगा। होम्योपैथी इज नॉट एट ऑल ए फेथ मेडिसिन। मैं आपको एक केस के द्वारा इस बात को खत्म करूंगा। इस केस को देख लीजिए, जस्ट होल्ड करिएगा। ये केस देख लीजिए, छोटा सा बच्चा है, आपको दिख रहा होगा, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन है, इतना सीवियर इन्फेक्शन है। मैंने इसका इलाज किया था और देखिए कैसे ठीक हो गए। आपको कंपैरेटिव पिक्चर दिख रहे हो, ठीक है? तो यहाँ विश्वास का क्या काम है? हाँ, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट किया हूँ, लेकिन थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। प्लीज, होम्योपैथी विश्वास की मेडिसिन है। होम्योपैथी मेडिसिन गोली है, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन, मारेगी तो मारेगी अगर सही निशाना लगा तो। जी। So further, anyone have any question, doctors? Any of you? Mention the name of book and author. Yeah, name of the book is Transfer of Drug Energy from a Distance. The author is Dr. B. Sani. It has been published by the B. Jain Publisher. Yeah, it is being published by them. So you can visit the bjainbooks.com. Here you will find the book. Whosoever want to purchase it, they can purchase directly from the website. .com पे भी इसके बारे में जानकारी कैसे होता है, इस पेज पर क्लिक करेंगे तो बताया जाएगा। उसके लिए आपको एक पूरा फुल डे का वेबिनार चाहिए और in next month we can conduct that. In fact, we can conduct it over there. अगर आप लोगों का सहमति रहता है, so we can conduct a webinar on this also. कि case based ना होके वो specific ही हो जाए कि drug transmission how it works. We can do that also because it is also a good topic. Thank you, Dr. Ravi. Thank you so much for giving such beautiful presentation. We have seen many of the beautiful cases. जो कि ब्लेफारोस्पाज्म means
नॉर्मल डिजीज नहीं है ये, एज यू सेड कि काफी कम केसेस आपने भी देखा है, काफी कम केसेस आते हैं. सो मैंने भी ऑनेस्टली आई हैव सीन दीज मच केसेस फॉर द फर्स्ट टाइम. So thank you, Dr. Ravi, and thank you all the attendees. Our attendees are demanding one more session with you. So surely we will attend, or we will organize one more session in the next month. So thank you all the attendees and Dr. Ravi for presenting such a beautiful presentation. So if we are done, so now we are winding up the session here. Thank you once again to all. Thank you all. Thank you, Dr. Bharti.